best and play the game. Do your best and play the game. We are the bulbuls, here's our aim. Do your best and play the game. We are the bulbuls, here's our aim. Do your best and play the game. We are the bulbuls, here is our aim. Do your best and play the game. We are the bulbuls, here is our aim. सारे करते सारे आपको वंदन है। पधारे गए अतिथियों को हमारा सशक्त अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आप सबने नोट भी किया होगा कि माँ सरस्वती के दीप के साथ में ही एक प्रतिमा रखी गई है। क्या आपने नोट किया है बच्चों या नहीं? किन की प्रतिमा है वो आप बता सकते हैं? एक बच्ची ने भी स्पीच दी थी आपके सामने पुस्तकालय दिवस। प्रिंसिपल केंद्रीय पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय जाजपुर श्री संजय सर, मोस्ट रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय व्यासनगर श्री कमलेश कुमार सर, respected teachers and my dear students. Annual panel, academic panel inspection is a part and parcel of our academic activities in the Kendriya Vidyalaya throughout India. This is the day which is eagerly waited by each Kendriya Vidyalaya, as this helps us to improve as much as possible and to reach the pinnacle of success. As you know, to see our faces, it is difficult without a mirror. We can see our faces and we can set our face by looking ourselves in front of a mirror. So this panel inspection and the dignitaries under the head of our beloved Assistant Commissioner Sri Birbal Dhinua sir will get opportunity to shape our teaching learning practice. They will act as mirror for us. So on this auspicious day, I take this privilege to welcome Sri Birbal Dhinua sir, Assistant Commissioner Kendriya Vidyalaya Sangathan Bhubaneswar Region, who is a man of language, who has a greater experience in the Kendriya Vidyalaya Sangathan, and also he is well known for his keen and minute and micro observation. So I hope
all of we will be benefited from his observation and his valuable suggestion. So welcome sir, welcome to our Vidyalaya. Next, I would like to welcome Sri Sanjay sir, principal. Expertise will help us to grow further, to move further, and to success further. Everyday teaching learning process is going on smoothly. We are trying the best. Still, no man is perfect in the world. So we need to learn something or more than our experienced or learned persons. So we will get that type of opportunity today. So we are fortunate here to have these dignitaries with us. Last but not the least, I would like to welcome Sri Kamlesh Kumar sir, Principal, PM Shri Kendriya Vidyalaya, Dasnagar. All the dignitaries will be asked throughout the day. They will observe our activities and suggest wherever we need improvement and wherever we correct ourselves so that we achieve more and more than we deserve. So once again, from the Kendriya Vidyalaya Anandpur family, I welcome all the dignitaries. Welcome you sir. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सुमन। श्रीमद
पुस्तकालय विज्ञान के महत्व को उन्होंने ही महत्ता दिलाई थी एक तरह से, पुस्तकालय विज्ञान को, लाइब्रेरी साइंस को। तब भारत में इसका प्रचार प्रसार करने में उनका सक्रिय योगदान रहा है, एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है एक तरह से। तो बेटे उसी कड़ी में हमारे बच्चे एक लघु नाटिका लेके आ रहे हैं अभी आपके सामने। श्रीमद पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस पर लघु नाटिका। प्रधानाचार्य, समस्त शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आज हम आपके समक्ष एक शिक्षाप्रद नाटक लेके प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है किताबों की पुकार। स्क्रीन की दुनिया में पुस्तकालय की अहमियत। इसमें आप देखेंगे कि कैसे किताबें, विद्यार्थी और स्मार्टफोन के बीच एक दिलचस्प वार्तालाप होता है। तो आइए देखते हैं कैसे किताबें अपनी पुकार सब तक पहुंचाती हैं। दृश्य 1, आधुनिक कक्षा। यह वो समय है जहां ज्ञान की दौड़ में स्क्रीन सबसे आगे है। क्या किताबों का कोई मूल शेष है? आइए जानते हैं। किताबें अब सब कुछ गूगल पर है। लाइब्रेरी का क्या काम? किताबें सिर्फ ज्ञान नहीं देती, वो सोच, अनुभव और संवेदनाएं भी देती हैं। अरे ये सब पुरानी बातें हैं, अब तो AI भी आ गया है। आइए बच्चों, चलते हैं एक यात्रा पर जहां किताबों की आत्मा और आधुनिकता साथ चलती है। दृश्य 2, जादुई पुस्तकालय। मैं पुरानी जरूर हूँ, लेकिन मेरे अंदर सभ्यताओं का इतिहास है। मैंने क्रांति की चिंगारी सुलगाई है। मैं तेज, स्मार्ट, अपग्रेडेड हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ है, लेकिन मैं ध्यान देती हूँ, गहराई देती हूँ और भटकाती नहीं। क्या किताबें अब भी हमें कुछ नया दे सकती हैं? आज का पुस्तकालय सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि आधुनिक संसाधनों, ई-बुक, इनोवेशन और स्किल्स का केंद्र बन चुका है। दृश्य 3, तर्क वितर्क। किताब बेनाम स्मार्टफोन। मेरे पास वीडियो, AI, चैटबॉट सब कुछ है। किताबें मेरी मुकाबला कैसे करेंगी भला? मैं संवेदना, एकाग्रता और कल्पना देती हूँ। मैं मन को स्थिर करती हूँ। पुस्तकालय ने मुझे शांति दी, सोचने की दिशा दी और खुद को पहचानने का एक अवसर दिया। दृश्य 4, आत्मबोध। रफ्तार बेनाम गहराई, भटकाव बेनाम फोकस। इस द्वंद में पुस्तकालय बना है एक पुल। शायद बात तुलना की नहीं, संतुलन की है। पुस्तकालय अब टेक्नोलॉजी से चलता है, पर किताबों की धड़कन आज भी जिंदा है। अंतिम दृश्य, संवेद स्वर। नई तकनीक के दौर में स्क्रीन स्मार्ट हो सकती है, पर किताबें बुद्धिमान होती है। और पुस्तकालय इन दोनों के बीच सेतु है। और इस तरह एक छोटी सी मुलाकात ने हमें याद दिला दिया कि किताबें सिर्फ शब्द नहीं, समय का संग्रह है जो हमें सोचने, समझने और जीने का नया नजरिया देते हैं। आओ हम सब मिलकर वादा करें कि उनकी पुकार को हमेशा सुनेंगे, क्योंकि जब तक किताबें जिंदा है तब तक ज्ञान और संस्कार की रोशनी बुझ नहीं सकती। धन्यवाद। बहुत ही शिक्षाप्रद नाटिका। माननीय सहायक आयुक्त महोदय श्री बीरबल धीमा जी, माननीय संजय जी, कमलेश जी, सर्वेश्वर साहु जी, रिस्पेक्टेड टीचर्स और प्यारे बच्चों,
एक पुराने टाइम में जब छोटे छोटे रिचार्ज होते थे तो एक ऐड आता था कि छोटा रिचार्ज बड़ा धमाका, है ना। आपका स्कूल वैसे ही निकला, सुपली बम निकला पूरा, इसमें धमाका निकला। कुछ दिनों पहले आप लोगों की यहाँ की टीम हैंडबॉल में टीम गई ना लड़कियों की, तो लड़कियाँ कहाँ हैं? हैंडबॉल टीम कहाँ है? खड़े हुए थे एक बार। बाकी बच्चे डांस में बैठे। तो देखिए आपके पास जगह कम है ना, आपके पास बड़ा सा मैदान नहीं है खेलने के लिए। दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी चीजें वहीं हुई है जहाँ पर मुश्किलें थी। लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, के पास वो आराम से सो लेते, है ना। अगर हमारी जिंदगी में मुश्किलें हैं, इसका मतलब ये है अगर लाइफ में मुश्किल आ गई है और कुछ चीजें हमारे पास कम है, इसका मतलब ये है कि हम कुछ जबरदस्त करने वाले हैं, है ना। और इस चीज को आपने यहाँ पर प्रूव किया है। देखिए तो आपके पास बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं है, छोटा सा स्कूल है, अगले साल हम नई जगह मिलेंगे, है ना। नेक्स्ट ईयर कहाँ मिलेंगे हम? हाँ, नई जगह मिलेंगे नेक्स्ट ईयर। आज का जो आपके सुबह के प्रोग्राम में एक से बढ़कर एक, हर प्रोग्राम एक से बढ़कर के एक। स्पेशल आइटम में वो लड़की इतना अच्छे से बोल रही थी, और इतनी अच्छी हिंदी मैंने बहुत दिनों के बाद स्टूडेंट से सुनी। क्या नाम है? हाँ, सभी बच्चे बहुत। और मैडम जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं उनकी आवाज़ तो ऐसे लगती है जैसे रेडियो में अनाउंसमेंट होता है ना, ठीक वैसे ही। तो आपके पास ऐसे टीचर है। म्यूजिक में देखिए कितना जबरदस्त कोऑर्डिनेशन है। म्यूजिक टीचर कौन है? हाँ। तो एक अच्छे टीचर की खास बात ये होती है कि वो साइड में खड़ा रहता है और उसके स्टूडेंट परफॉर्म करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि आपके सारे के सारे टीचर्स हैं, उन्होंने आप लोगों को इस काबिल बना दिया है कि आप अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। आप उनकी पहचान आपसे है, आपकी पहचान भी आपसे है, आपके शहर की पहचान भी आपसे है, और आपके टीचर्स की पहचान भी आप है। तो आप उस चीज को दूर दूर तक लेकर के जाते हैं। आज पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस है। आपके पुस्तकालय अध्यक्ष कौन है? मैं बच्चों से नाम सुनना चाहता हूं। आप सब लोग जानते हैं कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लाइब्रेरी से बुक इशू करवाई है अपने नाम पर? उधर कम वैसे है ना, प्राइमरी वाले, उनकी क्लास लाइब्रेरी होती होगी, ठीक है। और ऐसे कौन बच्चे हैं जिन्होंने रिसेंटली कोई किताब पूरी पढ़ी है लाइब्रेरी से लेकर के? हाँ, देखिए नंबर कम हो गया ना अभी, है ना। आपको वो भी ध्यान रखना है, आपको बुक्स पढ़ने हैं, है ना। लाइब्रेरी जिन्होंने पढ़ा है वो बहुत अच्छा, लेकिन बाकी बच्चे भी कम से कम आप ऐसे सोचें कि साल में एक ही किताब, लेकिन कोई ऐसे कैसे बोल सकता है कि आकर के कोई पूछे और साल भर में मैंने एक भी किताब को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा नहीं पढ़ा, है ना। तो आपको लाइब्रेरी जाना है, बार बार जाना है, बुक्स इशू करवाने हैं। मैं तो सोच रहा था वो किताबें यहाँ रखी हुई है ना, वो आप लोगों को देने के लिए किसी को, है ना। अभी कोई प्रोग्राम हो तो आप लोग, मैं सर से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको बुक्स दें। अगर आप लोग जीतते हैं कुछ तो आपको किताबें दी जाए, और जब उस किताब को आप पूरा पढ़ लेते हैं तो हमें फ़ोन करके बताइएगा कि आपने एक किताब को पूरा पढ़ लिया है। हाँ, तो वो जो किताबें पढ़ने के बाद में सर के पास जाकर के बताइए, सर को बोलिए बुक बनाने के लिए, लाइब्रेरी सर को बोलिए रिकॉर्ड रखने के लिए, आप उसमें अपना नाम लिखिए जाकर के कि हाँ मैंने इस किताब को पूरा पढ़ लिया है। लाइब्रेरी की किताबें है ना, देखो पहले एक ज़माना था जब लाइब्रेरी की किताबों को ताला लटका रहता था, ऐसे ताला लगा के रखते थे अलमीरा। अब किताबें जब आप जाते हो ना तो किताबें बुलाती हैं आपको, आजा मेरे पास आजा, मैं तेरे लिए बनी हूँ। फिर भी आप उसको देख करके अनदेखा करके इधर उधर आ जाते हैं, फिर कोई दूसरी किताब आपको बुलाती है कि नहीं? आपने देखा क्या सर? आपने फील नहीं किया? सभी किताबों को इस तरह से रखा जाता है कि उनका नाम आपकी तरफ रहे, आप उनको पढ़ें, और नाम को पढ़ करके हो सकता है उसका कलर आपको अट्रैक्ट लगे थोड़ा सा, तो कलर बुला ले, या हो सकता है उसका नाम बुला ले,
या कोई लेखक का नाम हो वो आपको खींच ले अपनी तरफ, तो इस तरह से किताबें आपको बुलाती हैं। आपका जो छोटा सा स्कूल होकर के आप बहुत बहुत अच्छा कर रहे हो, इतनी अच्छी मॉर्निंग असेंबली, इतने अच्छे एक से बढ़कर के एक सारे के सारे प्रोग्राम, तो हमारे एक अच्छे दिन की शुरुआत आप लोगों ने कर दी है और दिन भर हम और अच्छी अच्छी चीज़ें आपके यहाँ से लेकर के सीख करके जाएंगे। सर हम बात कर रहे थे आपस में, सर बता रहे थे कि इनकी जो टीम है ना वो फर्स्ट आई है डांस में, हमारे वाली सेकंड आई है ऐसे बोल रहे, दूसरे सर बोल रहे हमारी थर्ड आई है। लेकिन जब डांस पूरा खत्म हो गया उसके बाद में सर ने बोला नहीं ये तो सही हुआ है ना। उन्होंने आपकी जो मेहनत है ना उसको जस्टिफाई कर दिया, स्टैंप लगा दिया कि आपने मेहनत की है इसलिए आप वहाँ तक पहुँचे हैं। तो अच्छा लगा और भी अच्छा लगेगा दिन भर, और कुछ चीज़ें देखेंगे, हम आएंगे। छोटा स्कूल होने का ये फ़ायदा है कि हम कोशिश करते हैं हर क्लास पे पहुँचते हैं। बहुत बड़े स्कूल हो तो बहुत मुश्किल होता है हर क्लास में जाना। आप लोगों से बात कर सकते हैं, आपके टीचर्स आपको जानते हैं, आपके टीचर्स आपके पेरेंट्स को जानते हैं, 1-to-1 आप लोगों की बातचीत होती है ना। आप लोगों की टीम बहुत बहुत अच्छी, आप बहुत अच्छे हैं, आपके टीचर्स बहुत अच्छे हैं। थैंक यू वेरी मच।